Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity Current Affair class. We are covering the very first week of January. And coming to the topics, we'll be covering one is the CAG report about the status of state finances. Different states वो कितना टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितनी डिपेंडेंसी है अपॉन ग्रांट इन एड और एफआरबीएम ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। then there are various year-end reports of ministries. So we'll be covering two ministry reports. One is Law and Justice, and second is Ministry of Rural Development. So today's class will be more and more data ridden. So I would request के तुसी कुछ ना कुछ important datas और note करके याद कर लेना। So in polity governance we have to quote data to substantiate our arguments. So बहुत बारी ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਅਰ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ authoritative data ਹੈ to quote in the mains examinations. In the end we'll be discussing question based on our discussion. Coming to the very first topic, and that is CAG flags states fiscal stress as debt committed spending erode revenue gains. So CAG की रिपोर्ट हाईलाइट की कर रही है that fiscal stress है states ਦੇ ਉੱਤੇ। If we come to the findings of the report, that total revenue receipts जो states दी हैं ਉਹ 37.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। then revenue mix ਦੇ ਵਿੱਚ shift ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ state ਹੁਣ internal capacity ਤੇ depend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ rather than external sources. Although some states like Bihar, they are heavily dependent upon grant aid, special grants from the center. But ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ states खुद ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 14-15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ there is more and more reliance upon own sources. Coming to some deeper facts, that states own tax revenue, तो जो भी सरकार ਦੀ state ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ। ਦੈਨ ਟੈਕਸ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ that forms 30% of their total income. Then grant and aid ਦੇ ਵਿੱਚ declining trend ਹੈ over the decade as we discussed 14-15 finance commission ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ here it comes that 12% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੋ grant and aid ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। Then non-tax revenue, this is most problematic area of states. Now, we are in the age where we seek entrepreneurial government. सरकार सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे ही भरोसे ना बैठी रहे बल्कि सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना चाहिए, वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो या फिर जो अलग अलग स्टेट की कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन ये बहुत कम है और स्टैग्नेंट है ओवर द पीरियड 8%। non-tax revenue forms only 8% of state resources. So entrepreneurship नु को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है स्टेट के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज डीलिंग विद entrepreneurship deficiency, तो यहाँ करेक्ट करना होगा। देन वी कम टू रीजनल डिस्पैरिटी। सो फिस्कल ग्रेट डिवाइड का नाम देता है रिपोर्ट ने इन्हों, और क्या है कि भाई हाई सेल्फ रिलायंस जहां पर स्टेट के खुद के टैक्स रेवेन्यू 60% से ज्यादा शेयर रखते हैं, दैट इज हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो ये वो स्टेट हैं जो ओन टैक्स रेवेन्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट देन द फिस्कल डिवाइड टेल्स अस दैट बिहार स्पेशली, देन हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दे आर हेवीली depending upon grant in aid from the center or transfer of funds from the center जो vertical पे horizontal devolution through states को मिलता है। then implication that economic shocks हैं states के लिए और फिर revenue की autonomy नहीं है state के पास। then debt and budgetary stability, so this again a gray area। so here total जो debt है state का that is 67.87 लाख करोड़। तो ओवरऑल अगर हम सारे स्टेट्स को देखें तो जो स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सो उसके 23.42% इन्होंने डेट लिया हुआ है। सो बेसिकली ये कि सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस है। इतने ज्यादा डेट के अंदर अगर आप हैं तो पहली बात तो आपके खुद के जो रिसोर्सेज हैं वो डेट के जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें जाएंगे, आगे हम देख भी लेंगे फैक्ट। लाइक जो
ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टेट का है, कहाँ लॉक्ड अप स्टेट हो रहे हैं, दैट इज इनटू सैलरीज, पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो यहां पर रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर डेट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में आपको वेस्टेज करना पड़ेगा। देन क्राउडिंग आउट इफेक्ट, दैट इज हाई कमिटेड स्पेंडिंग रिड्यूसेस द फिस्कल स्पेस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जब इतना सारा पैसा आप कहीं सैलरीज पे, पेंशन्स पर, या इसके अलावा आप इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर रहे हैं, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वहां पर स्पेंड करने के लिए आपके पास कम मनी होता है। फर्दर वी कम टू डेफिसिट एंड लिक्विडिटी स्ट्रेस। सो देयर इज डेफिसिट पैराडॉक्स। 16 स्टेट्स हालांकि रेवेन्यू सरप्लस में है, लेकिन बाकी स्टेट रेवेन्यू सरप्लस पे नहीं है, खासकर 12 स्टेट जहां पर रेवेन्यू डेफिसिट का फिनोमेना है। ऑल्दो देयर इज अ राइज seen in Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Rajasthan. Then they are having liquidity crisis. 16 states तक वो liquidity crisis तक है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ RBI ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ in the form of ways and means advances. Then if we come to concentration of stress, so Rajasthan, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो स्टेट हैं जहां पर 62% इन्होंने ओवरड्राफ्ट यूजेज किए हैं। देन इट कम्स टू रिफॉर्म स्पॉटलाइट, दैट इज ऑब्जेक्ट हेड हार्मोनाइजेशन। बस ये एक फैक्ट याद रखिएगा, कैग ने एक तो यूनियन और स्टेट के अकाउंट मेंटेनेंस को सिमिलर लाइन पे अलाइन करने के लिए कहा है, और साथ में कहा है कि ऑब्जेक्ट हेड हार्मोनाइजेशन करना है। ये एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हर खर्च हुए पैसे को पर्टिकुलर हेड के अंदर मेंशन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इससे जो भी मिस क्लासिफिकेशन है एक्सपेंडिचर की, वो एलिमिनेट कर दी जाएगी। नाउ वी मूव टू द कंक्लूजन, दैट इज, सबसे पहले प्रॉब्लम है फ्रजाइल रेजिलेंस की। व्हाट इज रेजिलेंस? लाइक अगर मैं कहूं इंडियन इकोनॉमी रेजिलेंट होती चली जा रही है, तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमी टू अब्सॉर्ब द शॉक्स विदाउट मच डिस्टर्बेंस। सो स्टेट को अपना टैक्स कलेक्शन में रोबस्टनेस लानी पड़ेगी। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको ज्यादा राइज करना पड़ेगा, दैट कैन बी यूजर चार्जेस, दैट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप। देन स्ट्रिक्टली अडहेयर करना है एफआरबीएम पाथ को, ताकि फिस्कल डेफिसिट आपका एक हद से ज्यादा ना बढ़े। और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2028 में अकाउंटिंग आप जो है वो रिफॉर्म लेवल पे करेंगे, ताकि डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम हर इनकम और खर्च के हेड को अच्छे से देख पाए। देन कम टू कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म in India, capacity, technology, and access. This is basically लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ईयर एंड रिपोर्ट के लॉ एंड जस्टिस में कहाँ कहाँ कितना काम किया गया है। तो वेरी फर्स्ट इट इज अबाउट हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट। सो इट सेज दैट 2025 में 157 न्यू जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। डिस्पाइट दैट वी आर सीइंग 1/3 वैकेंसी इन ऑल द हाई कोर्ट्स। देन वी कम टू स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। 47 एडिशनल जजेस को परमानेंट कर दिया गया है, और 12 नए चीफ जस्टिस भी डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट में लीड करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। देन इट कम्स 44 ट्रांसफर्स की गई हैं, ताकि जुडिशियल माइंड्स की एक पैरिटी सारे ही देश में बनी रहे। दिस अबाउट हाई कोर्ट लेवल। एंड देन देयर इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस इन फिलिंग द वैकेंसीज। हालांकि 1/3 वैकेंसी अभी भी है, लेकिन इससे पहले इतनी स्पीड में जजेस अपॉइंट नहीं किए जा रहे थे, तो अब ज्यादा फोकस है हाई कोर्ट लेवल पर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, जिससे पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन को निपटाया जा सके। Further we come about digital transformation. So e-courts project का phase 3 already enroll हो चुका है, and very important जो आपको याद रखना है, that comes with that we have become global leader in conducting virtual hearings, online hearing जिसको कहा जाता है। So we have conducted 3.91 crore virtual hearing. This is the highest globally. Then digital economy in the law. So 1215 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू एज कोर्ट फीस। सोचे 1000 करोड़ से ज्यादा कोर्ट फीस पे कर रहे हैं इंडियन सिटीजन। देन ई कोर्ट्स मोबाइल ऐप के 3.38 करोड़ डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बेंच हो रहा है विद द केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन देर आर 1987 ई सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं, तो वो सारे सिटीजन जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, वो ई सेवा केंद्र के जरिए भी सुविधाएं ले सकते हैं। फर्दर वी कम टू लीगल रिसर्च एंड ग्रास रूट आउटरीच।
टैले लॉ एक्सपेंशन किया गया है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत को भारत के सभी 776 जिलों में टैले लॉ से जोड़ दिया गया है। एंड 1.12 करोड़ बेनिफिशरीज ने प्री लिटिगेशन एडवाइस वो रिसीव की है जो फ्री लीगल एड सेल्स होते हैं। देन देर आर trained 37,000 plus participant across 638 districts. Then there is a constitutional literacy program that is called हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इसके थ्रू लीगल राइट्स की अवेयरनेस 70 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दी गई है। देन इट कम्स दैट इंक्लूसिव लीगल एड। सो नए टारगेट स्पेसिफिक स्कीम शुरू की गई हैं, जैसे वीर परिवार सहायता। तो श्रीनगर में इसको लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। सो लीगल एड ये प्रोवाइड करते हैं डिफेंस पर्सोनल्स को। इसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है तो स्पेशलाइज्ड नालसा स्कीम है फॉर द विक्टिम्स ऑफ एनिमल अटैक और कन्फ्लिक्ट। देन देर इज अ स्पुहा स्कीम जिसमें जो प्रिजनर्स हैं, क्राइम विक्टिम्स हैं, इनके जो डिपेंडेंट्स हैं इनके ऊपर, उनको कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन इट कम्स दैट न्याय विकास 2.2 that is related to efficiency and infrastructure. So we are having 774 operational fast track courts, जिसमें खास तौर पे आपने याद रखना है 398 पॉक्सो कोड्स हैं। और इसी की वजह से जो डिस्पोजल रेट है ये अब हमारा हाई होता चला जा रहा है। सो वी आर हैविंग 7.41 केसेस पर मंथ पर कोर्ट, दिस द डिस्पोजल रेट। एंड देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। जैसे अगर हम कोर्ट हॉल्स की बात करें तो जहां 15,000 के लगभग कोर्ट हॉल्स थे, अब 22,000 तक ये कोर्ट हॉल्स पहुंचाए जा चुके हैं। देन देर इज अ टेक मॉनिटरिंग दैट न्याय विकास पोर्टल 2.0 के साथ 94.66% जियो टैगिंग की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है अबाउट द कंस्ट्रक्शन। फर्दर इट कम्स दैट इट इज अ रोड फॉर ईज ऑफ जस्टिस। सो बेसिकली जो हम लॉज के अंदर भी देख रहे हैं कि पनिशमेंट एस्पेक्ट से हटके अब हम सिटीजन सेंट्रिक लॉज लेके आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ आईपीसी रिप्लेस्ड विद भारतीय न्याय संहिता। नाउ अब हम अपने जुडिशियल सिस्टम को भी कोशिश कर रहे हैं केस सेंट्रिक ना करके बल्कि सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए ताकि रियल जस्टिस इन रियल टाइम लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा एआई बेस्ड टूल्स का यूज किया जा रहा है, जैसे लेग्रा, दिस इज लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट। फॉर द वर्ल्ड बैंक का जो एक कंसेप्ट है बी रेडी फ्रेमवर्क, तो इसको भी इंडिया में अब बूस्ट किया जाएगा। देन वी मूव टू द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ईयर एंड रिपोर्ट। सो हियर इट कम्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज लागू हो चुका है, जिसमें 25,000 और भी ऐसी हैबिटेशन जो रोड से कनेक्टेड नहीं थी अब उनको कनेक्ट किया जाएगा। Then, most important thing which has to be memorized, that is 95% जो भी सैंक्शन रोड हैं ये कंप्लीट कर दी गई। मतलब जितने भी सैंक्शन हुए हैं उसमें 95% रोड्स आर बीन कंप्लीटेड। सो दिस अबाउट 7.87 लाख किलोमीटर बीन कंप्लीटेड। एंड व्हेन वी कम टू रीजनल, सो तमिलनाडु इज लीडर इन रोड कंस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा रोड का कहां कंस्ट्रक्शन हुआ है, दैट इज इन दी तमिलनाडु। एंड देन हिमाचल प्रदेश जो भी हिली या डिफिकल्ट टेरेन के अंदर रोड्स बनाई जा रही हैं उसमें हिमाचल प्रदेश लीड कर रहा है। तो ओवरऑल तमिलनाडु, डिफिकल्ट टेरेन में हिमाचल प्रदेश लीड कर रहा है। देन बिहार, वही बिहार जो काफी फेमस है ब्रिजेस के गिर जाने चोरी हो जाने को लेकर, लेकिन यहाँ पर 481 ब्रिजेस कंप्लीट किए गए हैं इन 2025 फाइनेंशियल ईयर। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फोर्थ फेज है, एज वी डिस्कस्ड, 25,000 हैबिटेशंस को अब कनेक्ट करेगा रोड के साथ विद एन आउटले ऑफ 70,000 करोड़ रुपीज फॉर द लिवलीहुड ट्रांसफॉर्मेशन। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट को एक बड़ा बूस्ट मिला है और लखपति दीदी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन पर सरकार का ज्यादा फोकस है। सो मास मोबिलाइजेशन है 10.5 करोड़, 10.05 करोड़ वुमेन को जोड़ा गया है 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। और इसी के साथ एक अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि एनपीए लेवल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल फॉल पे आ रहा है। जो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ मान लीजिए लोन ले लेते हैं बैंक से और फिर वापस नहीं कर पाते हैं। सो जहां 2014 में ये 9.58% का एनपीए था, 2025 में इट्स ओनली 1.76%। फर्दर 2 करोड़ वुमेन ऐसी हैं जिनकी अब एनुअल इनकम, सस्टेनेबल एनुअल इनकम 1 लाख हो चुकी है। तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
देन जो टोटल बैंक क्रेडिट लिंकेज है विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज द कॉर्पस इज 10 लाख करोड़ रुपीस. Further we come that नरेगा is being replaced with the VBG रामजी एक्ट. इसको हम अलग से क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं. देन 125 दिन की गारंटी रोजगार होगी सप्लाई बेस्ड, और साथ ही एग्रीकल्चर पॉज. जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, मान लीजिए कि कटाई का काम चल रहा है, बुआई का काम चल रहा है, तो उसमें 60 डेज का मैंडेटरी पॉज विल बी देयर. देन जो शिफ्ट पैटर्न हुआ है अबाउट द फंडिंग, जहां जो नरेगा स्कीम थी दैट वाज 100% funded by the central government. Now this VBG Ramji will be on the sharing basis. So for the states like northeast and hilly region 90-10 का रेशियो होगा. 90 will be share of center and 10 स्टेट खुद उठाएंगे. लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए दिस अबाउट 60-40. फर्दर हाउसिंग एंड टारगेटेड इंक्लूजन. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.92 करोड़ हाउसेस बीइंग कंप्लीटेड. प्लीज ये भी अच्छे से याद कर लेंगे. और सिर्फ 2025 में ही 23 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं. इसके अलावा पीएम जनमन स्कीम के थ्रू 2.42 लाख हाउसेस दिए गए हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए. Further, social security and governance reform. So there is a digital inclusion like 91.45% Aadhaar seeding है for 3 crore pension beneficiaries. Then digital life certificates, 44 lakh pensioners को मोबाइल ऐप के थ्रू बिना उनकी फिजिकल विजिट के ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है. देन देयर इज दिशा डैशबोर्ड, जिसके थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है 100 से ज्यादा स्कीम की across 35 ministries, and this is boosting cooperative federalism as well. Then the conclusion is Viksit Bharat 2047. So the game is that अब रूरल इंडिया सिर्फ डेवलपमेंट का एक बेनिफिशियरी नहीं है, बल्कि ग्रोथ इंजन है. 2047 में जो हमें 30 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करनी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा फ्रॉम रूरल इंडिया. नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन. So, with reference to rural connectivity and women-led economic empowerment in India, consider the following statement and find how many statements are incorrect. So, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, nearly 95% of total sanctioned road length since 2000 been completed, amounting 7.87 lakh kilometer. Now, this has to be memorized. Both the facts are true. Then, as of 2025, Himachal Pradesh has constructed the highest number of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and Tamil Nadu accounts for the longest road length constructed. नहीं, ऐसा नहीं है. तमिलनाडु बेसिकली सबसे ज्यादा रोड्स तमिलनाडु के अंदर बिल्ड की गई हैं, और हिमाचल प्रदेश इज हैविंग रिकॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ रोड्स इन हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन. देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 aims to connect about 25,000 new habitations with an approved outlay of 70,000 crore rupees. Yes, sir. चौथे फेज में अब 25,000 घरों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. अंडर Deen Dayal Antodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, the non-performing asset level of self-help groups declined from 9.5% in 2014 to below 2% by 2025, indicating improved financial discipline. So क्योंकि बिल्कुल factual form में नहीं दिया, 1.76% around, so below 2% in 2025, yes, it is correct. So it's just a typing error here. How many statements are incorrect? Only one statement is incorrect. Moving to, with reference to revenue composition of Indian states and regional fiscal disparities, consider the following statements and find how many statements are incorrect. The state's own tax revenue constitutes the largest share of total state's revenue receipts, accounting for about half of the total collection. तो हाँ, लगभग 50% खुद का revenue resources है tax के through. Then the share of grant and aids in state revenue has shown an increasing trend over the last decade due to enhanced fiscal support by the center. Rather opposite. जो grant and aid है, इसमें over a decade decline देखने को मिल रहा है. Then within states,
own tax revenue, state GST has emerged as the single most important component contributing more than 50% of state own tax revenue. Yes, state GST is main feature there. Then states such as Bihar, Northeast state, Himalayan state drive more than 60% of their total revenue from their own tax sources, indicating high fiscal self-reliance. This is wrong. Rather, Bihar, Northeast state, ये यहाँ पर अच्छा perform नहीं कर रहे हैं. So states like Telangana, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, वो more than 60% revenue खुद के टैक्स से ही जनरेट कर रहे हैं. So here, two statements are incorrect. Moving to the Lakpati Didi initiative marks a qualitative shift from welfare to the empowerment. Discuss how DAY NRLM has strengthened women's economic agency, financial inclusion, and credit discipline, citing recent performance indicators. That will be all for today. Thank you.